बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So children, yes, children, you all might be knowing we are having our preparatory class 6, right? And for this week, our topic is story of sacrifice. The story of Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. So what is the story behind the sacrifice, what Ibrahim alayhi salam did, and what is the story behind Qurbani? That all things we are going to see in our today's lecture. Okay. So let us begin. As you all know that we are approaching to the days of sacrifice. Now, how is this the day of sacrifice? बकरीद आ रही है, राइट? आप लोग सबको पता होगा ना, कुर्बानी होती है बकरीद। Yes. So, it is a story. The days of sacrifice are near. Okay. So on this special day, that is Eidul Azha, we see that there is a story behind a sacrifice. ये कुर्बानी हम क्यों करते हैं, इसके पीछे एक story है. And that story is between Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. This is the story of ultimate sacrifice. We see here that when Ibrahim alayhi salam was given his son, when he was blessed with a baby boy by Allah, Ibrahim alayhi salam had a deep love for Ismail alayhi salam. अब यहाँ पर ये sacrifice कैसे है, ये story में sacrifice मतलब किसी चीज को कुर्बान करना. अब हम लोग देखेंगे कि ये story में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस चीज की कुर्बानी दी और कैसे कुर्बानी दी थी. ठीक है. I'll be sharing my screen with you. I hope my screen is visible. Yes. Yes, Alhamdulillah. Okay, so let's start. Let's see the story behind it. पहले हम story देखेंगे, उसके बाद we will find out that evidence that why it is called as a sacrifice and बीच में क्या ऐसा हुआ था story के अंदर. So let us see. Now, one day he started to receive the dream. Now, as I already told, after a very long time, बहुत ही time span के बाद, Ibrahim alayhi salam was blessed with a baby boy. Right? Now, as compared to a normal father, Ibrahim alayhi salam used to love Ismail alayhi salam a lot. बाकी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनसे ज्यादा इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे से प्यार करते थे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से प्यार करते थे. और वो क्यों करते थे? Because Ibrahim alayhi salam waited for over 100 years until he got a first child. उन्होंने 100 साल इंतजार किया था, तब जाकर उनको बेटा हुआ था. And when that child grows, इस्माइल alayhi salam उनको हुए. फिर जब इस्माइल alayhi salam started growing, that piety and righteousness appear on the face of Ismail alayhi salam. इस्माइल अलैहिस्सलाम के फेस से ही एक नूर झलकता था.
And Ibrahim alayhi salam used to see Ismail alayhi salam as a very righteous, बहुत ही अच्छा इंसान, a very pious, a very obeying and a prophet to be. इब्राहिम अलैहि सलाम को इस्माइल अलैहि सलाम के अंदर दिखता था कि वो एक नबी होने वाले हैं. तो उस कनेक्शन में वो उनका जो बॉन्ड था, उनका जो लव था, वो इस्माइल अलैहि सलाम के लिए इतना ज्यादा था जो एक नॉर्मल फादर का नॉर्मली अपने सन से होता है, उससे भी ज्यादा प्यार वो अपने बेटे इस्माइल अलैहि सलाम से करते थे. नाउ not only the heart of Ibrahim alayhi salam is attached to Ismail alayhi salam, but as a righteous son with a bright future. जैसे मैंने आपको बताया ना, इब्राहिम alayhi salam को एक bright future नजर आता था इस्माइल alayhi salam में. His heart become lot more attached to his son. इसी connection में उनका heart बहुत ज्यादा attached हो गया था इस्माइल alayhi salam से. And we also see the story of Zamzam. In this previous lecture, we have already seen the story of Zamzam, right? इब्राहिम alayhi salam ने उस स्टोरी में भी आपने देखा होगा कि एक सैक्रिफाइस किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द कमांड ऑफ अल्लाह. अल्लाह की तरफ से एक कमांड आया था टू लीव हिज वाइफ एंड हिज सन इन दैट बैरन लैंड. वो उनके लिए एक आजमाइश थी, राइट? किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा ना कि अपने घर वालों को या किसी को ऐसे जगह पर छोड़कर जाए जहाँ कोई लोग नहीं होते हैं, जहाँ कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जहाँ पर ये डाउट है कि इंसान सरवाइव कैसे करेगा. उस हालत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने just because Allah has commanded him, just because he have put all the trust in Allah, और वो बेबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर वहां चले गए थे और उन्होंने दुआ भी की थी कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे, राइट? बट नाउ द टेस्ट वाज समथिंग डिफरेंट. वो तो एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक आजमाइश थी, बट इस स्टोरी में हम देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक और बहुत बड़ी आजमाइश आई थी जिसमें उनको एक चीज सैक्रिफाइस करनी थी. और वो क्या सैक्रिफाइस करना था? दैट वाज इस्माइल अलैहिस्सलाम. अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे सैक्रिफाइस करना था? वी विल सी द होल स्टोरी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम had to endure a great test. As I told you कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक आजमाइश थी. An angel came to him and said, you have to sacrifice your only son. In the whole story, what happened? See on the screen. The story of Qurbani states that Ibrahim alayhi salam experienced a dream one night. One night, Ibrahim alayhi salam was sleeping, and at that time he saw a dream in which Allah told him to sacrifice Ismail alayhi salam. And who was Ismail alayhi salam? Ismail alayhi salam was the son of Ibrahim alayhi salam, right? At first, जब उन्होंने वो ख्वाब देखा, जब उन्होंने वो सपना देखा, तो he believed that it might be a devil. उनको लगा कि ये शैतान की तरफ से कोई वसवसा होगा. So what he did? He immediately forgot it and he went to sleep again. Now, the following night, the same dream occurred again. वही सेम ख्वाब उनको दोबारा आया. जब वो सो गए, ख्वाब देखा उन्होंने, उनको लगा शैतान की तरफ से वसवसा है, वो भूलकर दोबारा सो गए. उसी रात उनको यही ख्वाब दोबारा आया कि अल्लाह ने उनको कमांड किया है टू सैक्रिफाइस इस्माइल अलैहिस्सलाम. ये ख्वाब 2 बार आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम केम टू रियलाइज दैट दिस वाज नो फ्लूक and was in fact a message of Allah. जब उन्होंने ये ख्वाब 2 बार देखा एक ही रात में, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है. तब उनको ये रियलाइज हुआ कि अल्लाह का कमांड है उनके लिए कि उनको अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी है. नाउ चिल्ड्रंस, आप लोग नॉर्मली सोच सकते हैं, यू ऑल कैन इमेजिन कि एक फादर के लिए कितना बड़ा टेस्ट होगा अपने बेटे को कुर्बान करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जस्ट बिकॉज अल्लाह इज कमांडिंग हिम इन द ड्रीम्स टू सैक्रिफाइस इस्माइल अलैहिस्सलाम. सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीइंग अ फादर. और हमने पहले भी देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी इस्माइल अलैहिस्सलाम से, right? Why? Just because of his piousness, his righteousness, उन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था. Still,
Ibrahim alayhi salam got a dream to sacrifice Ismail alayhi salam. Now this was a very big test for a father, right? For for Ibrahim alayhi salam. Next, Ibrahim alayhi salam loved his son Ismail alayhi salam. ये हमने पहले भी देखा, and no doubt every father loves his child, right? तो उसी तरह इब्राहिम अलैहि सलाम used to love Ismail अलैहि सलाम. Yet he was fully prepared to follow Allah's command and do as he instructed. वो इतना ज्यादा प्यार करते थे इस्माइल अलैहि सलाम से, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह के कमांड को एक्सेप्ट किया एंड he was ready to sacrifice Ismail alayhi salam just for the sake of Allah. आप लोग को पता है ना कि इब्राहिम अलैहि सलाम was born in an home where there was ideal worshippers, जहां पर बुत पूजे जाते थे, लेकिन still इब्राहिम अलैहि सलाम, since he was child, he used to know that there is no God but Allah, and he used to know the concept of tawheed, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हमें अल्लाह की ही इबादत करनी है. He was knowing that, and since child उनको अल्लाह की तरफ से जो भी कमांड आता था, he always used to follow those commands. So in this story also आप देखेंगे कि इतना बड़ा टेस्ट है, इतना बड़ा कमांड अल्लाह की तरफ से आया है कि उनको अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना है, but still इब्राहिम अलैहि सलाम is accepting that. Now, let's see further. He took his son to the top of the Mount Arfat and brought him a knife and rope. अब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के माउंट अरफात पर गए और वहां पर वो अपने साथ एक चाकू, एक नाइफ और एक रोप मतलब रस्सी, वो लेकर साथ गए. ठीक है. Upon reaching an appropriate place, जो ख्वाब में उन्होंने जो जगह देखी थी, वहां पर पहुंचने के बाद he told his son about his dream and what Allah has commanded him to do. अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो चाकू और रस्सी लेकर वो पहुंच गए माउंट अरफात पर. वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को जाकर उन्होंने बताया कि मुझे अल्लाह का हुक्म आया है, and what was the command of Allah? To sacrifice Ismail alayhi salam, right? Now, being an obedient son, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्माइल अलैहि सलाम was a very pious person, बहुत ही righteous person थे. He was a obedient son, right? Soon a prophet to be. तो वो बहुत ज्यादा obedient थे, and what Prophet Ismail अलैहि सलाम said, immediately obeyed the wishes of Allah and his father and asked that his hands and legs to be tied so that he may not struggle, and that his father blindfold himself so that he does not have to witness him suffer. Now, in this, अब क्या हुआ? इब्राहिम अलैहि सलाम ने पूरा ख्वाब उनको बताया. किसको बताया? इस्माइल अलैहि सलाम को, कि मुझे ख्वाब में अल्लाह का हुक्म आया है, अल्लाह का कमांड आया है that I have to sacrifice you. मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी है. Now here, see, अगर कोई भी चाइल्ड होता, see, in our life, हमारे लिए हमारी लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट? देयर इज अ लॉट. हमें अपना प्रेजेंट देखना है, हमें अपना फ्यूचर देखना है. देयर इज अ लॉट टू हैपन, बट सी द पायसनेस ऑफ इस्माइल अलैहि सलाम, दैट उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला. उन्होंने सिर्फ ये कहा अपने फादर से टू एक्सेप्ट द कमांड ऑफ अल्लाह. एंड व्हाट ही सेड, इस्माइल अलैहि सलाम आल्सो अंडरस्टूड दैट दिस वाज समथिंग फ्रॉम अल्लाह. उनको भी ये एहसास हो गया, उनको भी ये रियलाइज हो गया, वो ये बात को समझ गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से ही हुक्म है. और वो जानते थे कि अल्लाह अगर कुछ कमांड कर रहे हैं, अगर अल्लाह का कुछ हुक्म है, तो हमें उसे जरूर फॉलो करना है, राइट? इन सूरह as-Saffat we see surah number 37 in the Quran, and in ayat number 102, what Ismail alayhi salam said to Ibrahim alayhi salam. It is a very beautiful ayah. You can see Ismail alayhi salam said to his father, "Oh my dear father," very calmly he said, "Oh my dear father, do as you have been commanded." क्या बोला उन्होंने? कि आपको जैसा हुक्म आया है आप वैसा ही करिए. In next ayat we will see what he is saying.
Inshallah, you will find me from those who are the patient. See what a beautiful answer Ismail alayhi salam is giving. इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ माय डियर फादर, आपको जैसा हुक्म आया है अल्लाह की तरफ से आप उसको जरूर फॉलो करें और आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मतलब इतनी बड़ी कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी देनी है और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था। बट सी हाउ ब्यूटीफुली इस्माइल अलैहिस्सलाम इज टेलिंग टू हिज फादर कि जस्ट फॉलो द कमांड ऑफ अल्लाह एंड यू विल फाइंड मी वन ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग पेशेंट। आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ओके, so what he said, do as you have been commanded, this is the commandment of Allah, but indeed it will be from those who are patient. I will be from those who are patient. It was the statement from Ismail alayhi salam to his father Ibrahim alayhi salam to console him. अब इस हालत में भी इस्माइल alayhi salam को पता था कि मेरी कुर्बानी होने वाली है। उस वक्त पे भी इस्माइल अलैहिस्सलाम was so patient, he was so calm कि वो अपने फादर को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कंसोल कर रहे थे, उनको दिलासा दे रहे थे, we can say उनको दिलासा दे रहे थे that don't worry about it. आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप उसको बेझिझक फॉलो करिए, ठीक है। Now next क्या हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया and what happened? His father इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके पैर और उनके हाथ वो रोप जो वो लेकर आए थे उससे उन्होंने बांध दिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस सिचुएशन में सफर करते हुए ना देखे। वो अगर देखते उनको सफर करते हुए तो बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तकलीफ होती उनको। सो फॉर दैट पर्पस उन्होंने अपने आंखों पर एक काली पट्टी लगा ली। नेक्स्ट वी विल सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम did as इस्माइल अलैहिस्सलाम has said। अब उन्होंने हाथ पैर बांध दिए, उनको सामने खड़ा कर दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और अल्लाह का जो हुक्म था वो करने के लिए वो तैयार हो गए। blindfolded with the knife in his hand, उनके हाथ में नाइफ थी, आंखों पर पट्टी थी। he did as Allah has asked him to do। अल्लाह ने क्या कहा था, इस्माइल अल्लाह ख्वाब में उन्होंने क्या देखा था कि अल्लाह का कमांड है टू स्लटर इस्माइल अलैहिस्सलाम, करेक्ट। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने जैसे अल्लाह का हुक्म आया था उन्होंने वो काम कर दिया। When he took the blindfold off, जब उन्होंने अपने आंखों पर से वो काली पट्टी हटाई, to his surprise he saw a body of a dead ram in front of him। जैसे अल्लाह का हुक्म था उन्होंने बांध के अपना चाकू चला दिया, पर जब उन्होंने अपने आंखों पर से काली पट्टी हटाई तो उन्होंने क्या देखा सामने, a ram in the sense we can say a goat, okay। उनके सामने एक डेड रैम पड़ा हुआ था, मरा हुआ रैम पड़ा हुआ था। Now Ismail alayhi salam was completely unharmed and standing right next to इब्राहिम alayhi salam। इस्माइल alayhi salam बिल्कुल ठीक ठाक थे और वो इब्राहिम alayhi salam के बगल में खड़े हुए थे। This was a miracle ना। तो इन दिस स्टोरी पहले आपने देखा कि उन्होंने अपने उनके हाथ पैर बांध दिए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और जैसे अल्लाह का हुक्म था उन्होंने चाकू चला दिया था। बट जब उन्होंने काली पट्टी हटाई तो देखा वहां पर एक रैम, एक मरा हुआ रैम पड़ा हुआ था एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड हिम। At the first he thought that something has gone horribly wrong and that he had disobeyed the order of his creator। सबसे पहले तो ये चीज देखकर है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई या मैंने डिसोबे तो नहीं कर दिया अल्लाह को। लेकिन when he heard a voice telling him, उनको एक आवाज आई that Allah looks after his followers and that he need not worry। अल्लाह ने क्या एक आवाज आई उनके तरफ से कि अल्लाह सब देख रहे हैं और उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। A divine miracle has taken place। Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam had just passed a difficult test from Allah। Now in this you can see इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार थे कुर्बानी देने के लिए अपने बेटे की, जबकि वो अपने बेटे से इतना ज्यादा प्यार करते थे।
इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता था कि उनकी जिंदगी कुर्बान होने वाली है, लेकिन स्टिल ही वाज वन who was very calm. He was consoling his father, or he was one of the person who is being patient in this hard time. इतने उसके बाद भी आप देखेंगे इतना ट्रस्ट अल्लाह के ऊपर और इतना फॉलो, इतना अल्लाह को इतना फॉलो किया उन्होंने कि दोनों ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह की आजमाइश थी वो दोनों ने वो टेस्ट पास कर दिया. Now see children, Allah does not look at the amount that you sacrifice. अल्लाह पाक ये नहीं देखते हैं कि आप कितना उनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बट व्हाट अल्लाह लुक्स एट इज द हार्ट. वो दिल में देखना चाहते हैं कि आपके दिल में कितना तवक्कुल है, कितना तकवा है, कि आप अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में क्या कुछ खर्च कर सकते हैं. He just want to see that. उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जस्ट टू टेस्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी. और इस आजमाइश में क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम passed this test of Allah. He was ready to sacrifice his son just for the sake of Allah. When Allah commanded Ibrahim अलैहिस्सलाम to slaughter his son Ismail अलैहिस्सलाम, what happened? It was a very hard test, correct? But both of them passed this test. Now in this story again I'll repeat. मैं short में एक story को दोबारा से एक बार repeat करूंगी. Now one day he started to receive a dream. Who started to receive a dream? Ibrahim alayhi salam received a dream that he was slaughtering his child. He was slaughtering his child, matlab he is giving sacrifice of his child. And Ibrahim alayhi salam directly asked. ये भी एक आयत है सूरह सफत में, आप देखेंगे in surah number 37 and in ayat number 102 you will see what he said to Ismail alayhi salam. My dream that I am slaughtering you. What you suggest? उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम क्या सजेस्ट करते हो, क्या मुझे अल्लाह का ये हुक्म फॉलो करना चाहिए? डू यू थिंक दैट इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैड लव फॉर हिज सन? आपको पता है ना कि पहले भी हमने देखा कि कितना ज्यादा वो प्यार करते थे इस्माइल अलैहिस्सलाम से, बट स्टिल ही वाज सो काम आफ्टर नोइंग दैट इट वाज अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह. एंड ही वेंट टू इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड व्हाट ही इज आस्किंग कि तुम क्या सजेस्ट करते हो, वेदर आई शुड डू दिस और नॉट. तो हमने पहले भी देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितना ब्यूटीफुली आंसर किया था कि जस्ट फॉलो द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह एंड इंशाल्लाह यू विल फाइंड मी वन ऑफ द पर्सन हु इज पेशेंट, राइट? नाउ इन दिस होल स्टोरी चिल्ड्रन यू विल सी उन्होंने क्या किया. ही वाज रेडी टू sacrifice Ismail alayhi salam. He went to Mount Arfat. He took one knife and rope with him. And at reaching a particular point, एक जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से अपना पूरा ख्वाब बताया और उनसे उनका सजेशन मांगा. तो हमने ये पहले भी देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितना ब्यूटीफुली उनको आंसर कर दिया, करेक्ट? नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, उन्होंने हाथ पैर बांध दिए इस्माइल अलैहिस्सलाम के और अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली और अपने हाथों में चाकू लेकर वो कुर्बानी करने को तैयार हो गए. उन्होंने जैसे ही चाकू फेरा और अपने आंखों पर से पट्टी हटाई तो उन्होंने क्या देखा कि एक सामने एक डेड रैम पड़ा हुआ था. A dead body of one ram was in front of him and Ismail अलैहिस्सलाम was standing next to him. और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जरा सी भी खरोच भी नहीं आई थी. तो पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई या मैंने अल्लाह को डिसोबे तो नहीं कर दिया. बट अगेन one voice came from Allah that it was just a test from Allah and Allah is watching everything, so don't need to worry, right? This is the whole story, correct? Now we will see, ये तो story है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की sacrifice की, right? But next we will see that हम लोग कुर्बानी क्यों करते हैं, right? Now see in this slide you can see Ibrahim alayhi salam son was saved. ठीक है, अल्लाह पाक ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा मिराकल दिखाया था. What was the miracle?
इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक डेड रैम खड़ा कर दिया था, एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज सेव. इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंडरस्टूड दैट अल्लाह हैज बीन टेस्टिंग हिम. उस पूरे इंसिडेंट के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये रियलाइज हुआ कि अल्लाह मेरी आजमाइश कर रहे थे. Of course, Ibrahim alayhi salam was overcome with joy that he would not have to kill his son. And of course, इतने बड़ा टेस्ट पास करने के बाद उनको इतनी खुशी मिल रही थी कि अब उनको उनके सन का सैक्रिफाइस नहीं करना. इट वाज जस्ट अ टेस्ट ऑफ अल्लाह, और वो टेस्ट वो पास कर चुके थे. They both thanked Allah and sacrificed instead an animal. उन दोनों ने अल्लाह का शुक्र किया and they sacrificed an animal as Allah has ordered. अल्लाह की तरफ से वो रैम आ गया था, राइट? अल्लाह रिप्लेस्ड इस्माइल अलैहिस्सलाम. To remember this occasion, we Muslims celebrate every year, and like Ibrahim alayhisalam and his son, we sacrifice an animal. So, जो ईद उल अज़हा होती है या जो हम जिसको कहते हैं बकरा ईद, राइट? To remember the sacrifice, ये सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम्स हर साल ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक जानवर की कुर्बानी दी थी, उसी तरह हम भी whether it is goat, whether it is cow, उसकी हम कुर्बानी देते हैं, right? This reminds us that Allah put Ibrahim alayhi salam to a test to see whether he would really obey him or not. Now, अल्लाह ताला क्या देखना चाह रहे थे? अल्लाह ताला ने इतना बड़ा टेस्ट, इतना बड़ी आजमाइश क्यों ली थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? वो जस्ट टेस्ट करना चाह रहे थे. He knew that इब्राहिम अलैहिस्सलाम is very pious to Allah. वो अल्लाह के हर हुक्म को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, तौहीद के जो कंसेप्ट है उसको समझते थे, that we should worship none but Allah. Still अल्लाह पाक ने उनको टेस्ट करने के लिए ये आजमाइश उन पर डाली थी, एंड प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास द टेस्ट, एंड वी सेलिब्रेट इन रिमेम्बरेंस ऑफ दिस. और यही चीज को याद करते हुए हम बकरा ईद को सेलिब्रेट करते हैं. लाइक प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, we also share the meat of the sacrificed animal with the poor people and our friends. आप लोगों को पता है ना, आपके घर पे कुर्बानी होती होगी तो फिर जो कुर्बानी का गोश्त होता होगा वो लोग गरीबों को दिया जाता है, फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, करेक्ट? On this occasion we also thank Allah for everything that he has given us and for the lesson he taught us through the rescue of Ibrahim alayhi salam. और इस ओकेजन पे हम अल्लाह का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उसके लिए, और इस कहानी से हमें जो लेसन मिलता है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए. Now see this in Quran, in Al-Hajj, that is surah number 22, in ayat number 37, what Allah says, अल्लाह तक ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना उसका खून, ओके, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है. अल्लाह पाक को गोश्त नहीं पहुंचता है, ना ही जानवर का खून पहुंचता है, लेकिन अल्लाह ताला तक जो पहुंचता है वो क्या है? वो हमारे दिल के अंदर क्या है? हमारी परहेजगारी है. We see, Allah sees that how much we obey him, and this is not just an animal. ये तो हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, बकरा ईद के मौके पर हम कुर्बानी करते हैं, ये याद करते हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सैक्रिफाइस को याद करते हुए. लेकिन नॉट ओनली दिस एनिमल, लेकिन हमें ऐसा बनना है कि हम अल्लाह की राह में जो कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं वो हम सैक्रिफाइस करें. वेदर इट इज आवर टाइम, whether it is our strength, whether it is our money, or anything which is the most loved to you, you should sacrifice for the sake of Allah, because Allah sees everything and Allah gives us something more better in return. अगर आप कोई बेहतर चीज अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं और कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो अल्लाह उससे बेहतरीन रिप्लेस करके आपको देंगे. Why? Just because you are doing this for the sake of Allah, and Allah looks what is in every heart, right? Now here also we will see performing Qurbani today, since every year during the month of Zulhijjah, the last month of the holy calendar, the month which is coming is Zulhijjah, right? इस month में हज भी होता है, correct? And ये last month है Islamic calendar का. Muslims from around the world perform Qurbani to remember what Ibrahim alayhi salam did. We use
his deed to inspire devotion, obedience and submission of our lives. अब इसी चीज को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? मुस्लिम सैक्रिफाइस एनिमल, प्रेफरेबली गोट है, काउ है, कैमल है, विथ स्पेशल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस. उसको कुर्बान करने के भी देयर आर सम स्पेशल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, राइट? Now children, I hope everyone understood. Now moving forward, see, Allah says it is not about slaughtering your son or not. It is not about कि आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देते हैं या नहीं देते हैं. It's all about what is in your heart. Allah Ta'ala just wanted to check whether Ibrahim अलैहिस्सलाम obey him or not, और उनके दिल में क्या है. Because slaughtering Ismail अलैहिस्सलाम does not benefit Allah. क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से अल्लाह को कोई benefit नहीं मिलता, but Allah just wanted to see what is in heart of Ibrahim alayhi salam. The same way Allah want to see us also, that हम कितना sacrifice करते हैं अल्लाह के लिए. So children, does Allah comes before anything or anyone, including his most beloved son Ismail alayhi salam? क्या आपको लगता है कि अल्लाह के हुक्म से ज्यादा कोई भी चीज या कोई भी इंसान जरूरी है? नहीं. The same thought was of Ibrahim alayhi salam. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कमांड से ज्यादा कुछ और जरूरी नहीं था. There was nothing more important, not even his son. And his son, he used to love his son a lot, but still the son was also not that important. पर उनके लिए जो जरूरी था वो था अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के अरकान को फॉलो करना. So it's not about what you sacrifice. It is just about what you give, and it's about what is in your heart. Okay children, so I hope you all understood this. और इस स्टोरी से हमें क्या क्या सीख मिलती है? We should always put our trust in Allah. ये सीख भी हमें एक मिलती है. Now इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? उन्होंने ख्वाब देखा, right? And what happened? उन्हें पता था ये कि ये बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन still उन्होंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया और उन्होंने अल्लाह का कमांड फॉलो करने के लिए वो तैयार हो गए. सेम वे इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पता था कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म या अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता है. एंड सेम वे इस्माइल अलैहिस्सलाम आल्सो गॉट रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. एंड ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज पेशेंट, जो सब्र करने वाले थे, राइट? Now see, when you look at that, how the tawakkul again, the yaqeen of Ismail alayhi salam, ये यकीन आप देखेंगे, तवक्कुल देखेंगे, वो चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो या इस्माइल अलैहिस्सलाम का हो, इतना ज्यादा ट्रस्ट उनको था अल्लाह के ऊपर कि he was ready to sacrifice anything and everything for the sake of Allah. So I hope everyone understood the whole story. Is there any doubt? Is there any doubt, children? Am I audible? Yes, am I audible, beta? Can you hear me? Yes, ma'am. Alhamdulillah. Everything, is there any doubt? Okay, so let us just give me a minute. Yes, so I hope you understood the whole story. What is the story behind Qurbani, right? What is the story? An angel came to Ibrahim alayhi salam and said, you have to sacrifice your son. Ibrahim alayhi salam became very sad, but all the same, he know that Allah has given him an order.
So he had to obey it. But first of all, he asked his son. If he would agree, the son was good and pious, and he consoled his father. And what he said, if Allah has ordered it, you must obey. So sacrifice me. Do not fear. With the help of Allah, I shall be brave. So full of sorrow, Ibrahim alayhi salam prepared to kill his son. But before he actually did so, he heard a voice. He had shown and good intention. The voice told Ibrahim alayhi salam, this is sufficient. You have already fulfilled Allah's will, right? And what happened? What happened next? Ibrahim alayhi salam saw a dream. He was ready to sacrifice Ismail alayhi salam, and he took Ismail alayhi salam on Mount Arfa. Correct? He was having a knife and rope, and he asked Ismail alayhi salam what to do. Ismail alayhi salam said, yes, you have to obey the commandments of Allah and you can sacrifice me. So what Ibrahim alayhi salam did, he tied his legs and his hand with the rope. He blindfolded himself. उन्होंने काली पट्टी अपने आंखों पर बांध ली, and what he did, उन्होंने वो चाकू चला दिया. और जब उन्होंने वो चाकू चला दिया, उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों पर से काली पट्टी हटाई, उन्होंने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बहुत ज्यादा सेफली उनके बगल में खड़े हुए हैं. थोड़ा वक्त के लिए वो डर गए थे कि क्या मैंने कुछ डिसोबे कर दिया अल्लाह को. बट ही केम, वन वॉइस केम टू हिम, एंड व्हाट द वॉइस सेड, दैट don't worry, it is sufficient for you. Allah just wanted to see your heart, so you don't need to worry about it. Okay, moving next, I hope you understood the story. Story is very simple. और कुर्बानी हम क्यों करते हैं, इसके पीछे भी हमें वजह पता चल गई, right? Now since the first week, हम लोग हर week 5 names of Allah we are covering, right? पहले वीक में हमने 5 नेम्स ऑफ अल्लाह लर्न किए थे, नेक्स्ट वीक में भी हमने 5 किए थे. इस तरह से हमारे 25 नेम्स ऑफ अल्लाह हमने याद कर लिए हैं. करेक्ट? आज हम लोग नेक्स्ट 5 नेम्स देखेंगे जो हम याद करने वाले हैं दिस वीक, एंड वी विल कंप्लीट विद 30 नेम्स ऑफ अल्लाह. ओके, सो द फर्स्ट नेम व्हिच वी आर गोइंग टू सी फॉर टुडे इज as-Sami, the all hearing, the one who is hearing everything. Okay, no matter wherever you are, no matter if anyone is listening to you or not, Allah is always listening to you. Whether if you are doing something or whether you are praying to him, whether you are calling out to him, Allah is always listening to you. So as-Sami. 27th name which we are going to see, that is second name for today, Al-Basir, the all seeing. No matter children where alone, how alone you are, wherever you are, no one is watching you, but always remember that Allah is watching you, because Allah is Al-Basir, the all seeing. He knows what you are doing, what you are not doing, and what is in your heart, and each and everything happening around the world. Third name for today which we are going to learn is Al-Hakam, the judge, the giver of justice, the judge, the one who gives justice, the one who is fair. Now see, the fourth name which we are going to learn today is Al-Adl, the utterly just, Al-Adl. The last name which we are going to learn is Al-Latif, the subtle one, the most gentle. What are the 5 names? Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl and Al-Latif. Okay, so I hope ये याद हो जाएगा आप लोगों को. Alhamdulillah. I'll share this picture in the group. वहां से ग्रुप में से देखकर आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, and then आप उसको लर्न कर सकते हैं. ओके, नाउ दुआ पढ़ लेते हैं. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.